ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਚਲ ਉੱਥੇ ਚਲੀਏ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਅੰਨੇ ना कोई साडी जात पहचाने ना कोई सानू मन्ने। तो एक्चुअली ये जो गाना है इसके इसके पीछे एक स्टोरी है। बुल्ले नु समझावन आइयां भैणा ते भरजाइयां कि बुल्ले की बहनें और भरजाई जो आपकी सिस्टर इन लॉज उनको समझाने आई हैं मन ले बुल्लिया साडा कहना छड़ दे पल्ला राइयां। अब जो उनके मुर्शिद थे वो बुल्ला की जाना मैं कौन ना मैं मोमन विच मसीता ना मैं विच कुफर दिया रीता। तो एसेंशली चाहे मैं मस्जिद में मोमन भी नहीं हूँ और कुफर की रीतों में भी नहीं हूँ। बट आप ये देखो ना कि यहाँ पे उसका लोकल का वो कितना कल्चरल कितना वो दिख रहा है सामने, क्योंकि इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर ही एक फिलोसफर हुए हैं चारवाक, जिन्होंने कहा है कि Hey Brad, I have a question for you. Oh, this time you have a question for me. Yes, sir. Go for it. What's that big book that you're reading? What's that about? Oh, these books No, that I no, have never touched? the No. one अच्छा on your अच्छा अच्छा left, right? जो Yeah. मैंने खोल के रखी हुई है पहले से, जो मैंने Yes. स्टेज करके रखी हुई है. Yep, it looks like a big book, and I have seen that at your place many times, but I've never seen you reading it. So, what are you reading about? So this, by the size of it, you would think कि इसमें pictures बहुत सारी हैं, और जिस तरह की books मैं पढ़ता हूँ मतलब उसमें like बड़ी बड़ी pictures होती हैं. I didn't know that. This is a big book, but it's not a picture book. It's a very interesting book though. Okay. Poetry of Mystics and Sufis. Hmm. So it has different Sufis, different sections on them and different verses by them. Okay. I just happen to be on the section about Bulle Shah. Bhuliye. Bulle Shah. Wow. Yeah. So, which one are you reading right now? Bulle Shah chal othe chaliye. बुल्ले शाह चल ਉੱਥੇ ਚਲੀਏ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਅੰਨੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਜ਼ਾਤ ਪਛਾਣੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਮੰਨੇ। ना कोई साडी कदर पहचाने, अरे ना ना कोई कोई सानू मन्ने। सानू मन्ने. या Interpretation भी अच्छा है इसमें. अच्छा। Oh, Bulle Shah. So I don't think I need you for this episode. Alright, I'll be out. Oh, Bulisha, let's go to a place where everyone is blind, so that no one comes running to us in reverence or considers us superior and credible. Well, there you go. So, I mean, I think there's another version of it, and I don't know, like, if that one is correct or that one, because historically, this is what I have read, right? बुल्ले शाह चल ਉੱਥੇ ਚਲੀਏ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਅੰਨੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਜ਼ਾਤ ਪਛਾਣੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਮੰਨੇ। ਚੱਲ ਬੁੱਲਿਆ ਚੱਲ ਓਥੇ ਚੱਲੀਏ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ अक्ल मतलब ना सा- कोई हमारी जात, जैसे आप फर्स्ट ऑफ जात ऑल, तो पता है. yeah, but you have to put it in the context, right? Like, there is a socio-political context of that time. Like Bulleh Shah was born, I think, essentially in the late 1600s. And at that time there was a lot of, and it still is, like, very not to that extent, but very um, जात पात का और आपकी आप Caste which system. caste system, which caste you belong to and everything. And even within the Islamic world there were some impacts of it, right? तुमने वो गाना सुना होगा, आई थिंक, बुल्ले ਨੂੰ ਸਮਝਾਵਣ ਆਈਆਂ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਭਰਜਾਈਆਂ ਮੰਨ ਲੈ ਬੁੱਲਿਆ ਸਾਡਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿਉਂ ਤੂੰ something like that, right? uh, तो या मैं बताऊं, ये आया भी कौन सी मूवी में था? आई थिंक पाकिस्तानी मूवी थी खुदा के खुदा लिए, के लिए. हाँ. राइट? उसका बंदिया हो हाँ, टाइटल बंदिया, सॉन्ग था. या देयर यू गो। सो जरा आई गाओ फिर से. या सो बुलिया बुੱਲੇ हो ਨੂੰ बंद. ਸਮਝਾਵਣ ਆਈਆਂ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਭਰਜਾਈਆਂ ਮੰਨ ਲੈ ਬੁੱਲਿਆ ਸਾਡਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿਉਂ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਲਾਈਆਂ hard Nabi or not ready. I think, okay, so this is what I understood of that song, or this is what it means, right? Because the reason I'm saying that one, because I think it has that
Zat Paat wala context in there. So let me actually pull it up, that song, and we can actually read through it. Thing I know about him in his work, he like focused on moving away from these systems that we have created about, caste, zat, के मतलब mosques and rituals जो हैं मतलब to Yeah. reach God, you don't need to be confined to a religion, to a faith. And he was more about um, the humanity. Yeah, I mean that's And essentially and what. God and God can be found in oneself and in humanity. Yes, but that's essentially what Sufism points to, right? Like, he was of that Qadri Sufi order, which essentially came from his मुर्शिद जो थे उनके शाह इनायत कादरी. तो एक्चुअली ये जो गाना है इसके पीछे एक स्टोरी है, राइट? क्या सो स्टोरी? बुल्ले नु समझावण आईयां पैणा ते भरजाइयां. हाँ, तो ये इसके है, बुल्ले नु समझावण आईयां पैणा ते भरजाइयां, कि बुल्ले की बहनें और भरजाई जो आपकी सिस्टर इन लॉज उनको समझाने आई हैं. मन ले बुल्लिया साडा कहना, छड़ दे पल्ला राइयां. अब जो उनके मुर्शिद थे वो राई, राई मतलब उसको एक अराई जात के थे, जिनको कहते हैं. तो ही वॉज अ गार्डनर इन, आई थिंक इन लाहौर और समथिंग, आई डोंट नो. Mhm. तो लाहौर में थे, कहाँ थे, क्योंकि बुल्ले शाह खुद वहाँ उच्च में पैदा हुए थे, और आई थिंक वो कसूर से हैं, सेटल कसूर में हुए थे. Kasur, he या died in Kasur, I क्या, think. ही डाइड इन कसूर, या उनकी मज़ार है ना वहाँ पे, Hmm. राइट? या तो वो कह रहे हैं कि उनके वो थे, जो अराई जात के लोग थे, उनको नीचा समझा जाता था इन इन दैट अच्छा. पॉलिटिकल और सोशियो क्लाइमेट एंड एवरीथिंग. तो उनकी बहनें भरजाई उनको ये समझाने आए थे कि तुम जो हो खुद एक सैयद खानदान से हो, इन द सेंस दैट यू आर लाइक, आई थिंक दैट्स व्हाट इज बिलीव, राइट? लाइक, डायरेक्ट डिसेंडेंट्स ऑफ मोहम्मद, एंड लाइक, यू आर फ्रॉम दैट lineage, right? Yeah, Right. Sayyids are from the lineage of the Prophet, There you go. just like I'm a Sayyid. Yeah. So essentially that's what they were saying, that ये जो अराइयों के चक्कर में तुम पड़ गए और वो सब है. So that's what they're saying कि बुल्ले ਨੂੰ ਸਮਝਾਵਣ ਆਈਆਂ ਪੈਣਾ ਤੇ ਬਰਜਾਈਆਂ, ਮੰਨ ਲੈ ਬੁੱਲਿਆ ਸਾਡਾ ਕਹਿਣਾ, ਛੱਡ ਦੇ ਪੱਲਾ ਰਾਈਆਂ, पल्ले छड़ दे उनके, छोड़ दे. आल नबी औलाद नबी, तू नू तू क्यों लीका लाइयां, राइट? तो वही वो बात हो रही है ना कि सैयद, जब आप डिसेंडेंट्स हो, उनकी लीनियज से हो, नबी की और अली के, आप वो हो, लीनियज से हो, तो हाउ कैन यू लाइक गो देयर, राइट? राइयों के चक्करों में कहाँ पड़ गए. जेड़ा सानू सैयद समझे दोजक मिले सजाइयां. तो ये बुल्ले शाह कह रहे हैं कि जो हमें सैयद समझे उसको दोजक जाके वो मिले, सजा मिले. मतलब एक सेकंड में समझा नहीं. मतलब वो बोल रहे हैं कि इजात वगैरह के चक्कर में ना पड़ो, right? That's No. no, that's not what he's saying. No, He's so saying the opposite of that. no, so he is saying that, but he's also giving you a background of it, right? He's also saying that बुल्ले नु समझावण आई है पैणा ते भर जाइए. तो बुल्ला अपने आप को एक थर्ड पर्सन के उसमें रख के कह रहा है कि बुल्ले नु समझावण आई है पैणा, बहनें जो सिस्टर एंड सिस्टर इन लॉज हैं, बुल्ले को समझाने आई हैं कि इन लड़ाइयों के चक्कर में कहाँ पड़ गया. एंड देन छड़ दे बुल्ले आल नबी, जो वो कह रहे हैं कि आप उसकी लीनियज से हो, जेड़ा सानू फिर. अभी या बेसिकली वो ये बोल रहे हैं कि मुझे उनको कोई समझाने आया, उनकी बहनें, कि यार तुम क्यों किसी और जात के साथ ये अराई, इंटरैक्टिंग, मिंगलिंग. अराई स्पेशली आप जिनको आपने छोटी मुर्शद छोटी मान लिया है, जात. हाँ, जिनको हाँ. आपने मुर्शद मान लिया, वो छोटी जात से हैं, हाँ, तो उनके चक्करों में आप कहाँ पड़ गए, और छोड़ दो ये सब, राइट? सो हाँ. एसेंशियली दैट्स द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इट, गाने का, अच्छा. राइट? अच्छा, तो ये बेसिकली इसके पीछे स्टोरी है कि असल में ये या हुआ होगा. या तो बुल्ले शाह ने बोला होगा यार ये लोग क्या बात कर रहे हैं. no, of course, yeah. ये That's why he wrote it, right? Like that's he wrote this thing to show like a little bit of background कि ये सब हो रहा है, and that's how like I'm getting pressured from the अच्छा. family, and this is what I believe in, kind of thing, right? I Uh, see, I see. yeah. तो एक ये है, और एक्चुअली बाकी भी उनके इन्हीं मुर्शिद के साथ उनकी काफ़ी कहानियाँ वगैरह हैं, जिसमें वो जैसे उन्होंने आई थिंक तेरे इश्क नचाया कर थैया थैया.
ओह क्या गाना है. Yeah. Have you heard that one? तेरे इश्क नचाया कर करे थैया. Yeah, yeah. थैया. ये एक है, ये भी एक उनके लिए एल्बम आई लिखा था. थी. ये भी एक्चुअली जस्ट टू गिव यू लिटिल बैकग्राउंड, ये भी अपने उन्होंने मुर्शद के लिए लिखा था कि उनके मुर्शद उनसे नाराज थे किसी बात पे, जो उनका आपस में कुछ मतलब आई थिंक कहानी मैंने एक एक्चुअली किताब में पढ़ा था. मैं आई फॉरगॉट द नेम ऑफ द बुक बट आई विल ट्राई टू मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन. बट कि उनकी बुल्ले शाह के घर में कोई फंक्शन था, राइट. तो उन्होंने अपने उस्ताद जो मुर्शिद थे उनको भी बुलाया था. तो उनके मुर्शिद जा नहीं सके तो उन्होंने अपने किसी और चेले को भेज दिया था कि तुम चले जाओ, आई थिंक. तो वो चेले मतलब वो सादे कपड़ों में, सूफी वगैरह वो थे, तो वो सादे कपड़ों में गए और वो सब थे. तो आई थिंक बुल्ले शाह की फैमिली ने उन्हें ढंग से ट्रीट नहीं किया, एंड देन इन दैट कॉन्टेक्स्ट बुल्ले शाह डिडंट ट्रीट हिम राइट ईदर, राइट. तो उसकी वजह से जो उनके मुर्शिद, जब उन्होंने चेले ने जाके मुर्शिद को बताया तो वो नाराज हो गए कि ये उनको बनाने के वो सीन था हाँ. तो कि तेरे. मनाने के लिए आई थिंक इन दिस वन जब वो मान नहीं रहे थे तो एट द एंड ही एक्चुअली वेंट टू, ये कोई मज़ार थी जिसपे वो जा रहे थे उनके मुर्शिद, और इन्हें पता चला एंड ही वेंट देयर एज वेल. एंड वहाँ पे इन्होंने अपना मतलब एक्चुअली ये गाया भी, और एक पियानो वाला और एक ढोल वाले को साथ लेके गए थे और उसके साथ नाचे भी. और ये नाचते रहे जब तक कि मुर्शिद मान नहीं गए. तो तेरे इश्क अब नचाया उनको कर थैया थैया. उनको मनाने के लिए या ही बेसिकली छेती आ जो जावे भी बनी तो मैं ये मर है. जावा. या एक एल्बम है सुप्रीम इश्क के नाम से. हैव यू नो आई हैव heard नॉट it? नो. उसका जो वर्जन है ना, ये बहुत जबरदस्त वर्जन है. अच्छा. लाइक यूट्यूब पे है, टाइप इन सुप्रीम इश्क सुप्रीम इश्क. ओके. and you will see. Those of you who are listening to, if you haven't heard, you guys should definitely check that one out. Okay, Supreme Ishq. But I have a question for you, like, like a little bit in that context as well. क्योंकि तुमने आई थिंक ये मतलब और भी इसी उसमें गाने हैं. बुल्ले शाह का जैसे एक बहुत ही फेमस कलाम है, काफी है कि रांझा की रांझ जान. रांझा रांझा कर अच्छा दी अच्छा. वे मैं, उस पे भी आएंगे. लेकिन रांझा रांझा कर दी वे मैं आप पे रांझा होई, सद्दो नी मैनू तीदो हम्म. रांझा हीर ना आखो कोई. सो फॉर दोज हु डोंट नो द कॉन्टेक्स्ट कि मैं वो हीर और रांझा के उससे इसको कहते हैं इश्क एक इश्क हकीकी होता है और एक इश्क मजाजी होता है, राइट. तो ये इसके मजाजी है, जो इंसानों का प्यार होता है उसे इसके मजाजी मजाजी कहते हैं, और जो आप खुदा के साथ प्यार करते हो उसको इश्क हकीकी कहते हैं. बट बुल्ले शाह ने इसमें रेफरेंस यूज किया है इश्क मजाजी का, बट वो बात कर रहे हैं इश्क हकीकी की, खुदा से प्यार की, कि रांझा रांझा कर दी वे मैं आप पे रांझा होई, सद्दो नी मैनू तीदो रांझा हीर ना आखो कोई. कि मैं रांझा रांझा उसका नाम जपते जपते मैं खुद ही रांझा हो गई हूँ. सद्दो नी मैनू तीदो, मुझे अब रांझा ही बुलाओ, मुझे हीर ना कहो कोई, राइट. सो आई हैव लॉस्ट माई ओन आइडेंटिटी. जिसमें आप आई थिंक वारिस शाह के जो मुर्शिद थे उन्होंने भी कहा था कि कतरा मिला समंदर से समंदर हो गया, right. So essentially it's like a philosophical debate इट्स लाइक लव इतना डीप गई कि मैं अपने आप को भूल गई. अपने आप को भूल गई और मैं वही बन गई, राइट. सो वही इसके बन गई. या इसके हकीकी में आई कैन अंडरस्टैंड द रेफरेंस कि, और मुझे कई बार वैलिड भी लगता है कि इफ यू बिलीव इन गॉड, और इफ यू हैव दैट बिलीफ सिस्टम एंड एवरीथिंग, एंड इफ यू वांट टू बिकम दैट, श्योर, दैट्स द लाइक सूफीइज्म वे, और लाइक जो आपका अहम ब्रह्मास्मि भी है हिंदुइज्म में, वो भी यही बात करते हैं, जो अनल लेकिन हक. ये जो है अपने आप को भूल गए, ये एक trans. I don't think this is a feeling that is like you live with consistently. Like ये एक आप ट्रांस में जाते हो थोड़े टाइम के लिए जिसमें आप अपने आप को भूल जाते हो. आई थिंक ये उसको, और आई थिंक Maybe. सूफीज का ये था कि वो मलंग हो जाते थे, right? Yeah. Okay. I mean, yes. But I think मुझे एक्चुअली कुछ कॉन्टेक्स्ट याद आ रहा है उसका. आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट थिंग, बट आई थिंक बाबा फरीद ने भी कुछ ऐसा कहा था
कि और उसका एक्चुअली गुरु नानक ने गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर काइंड ऑफ आंसर भी किया था कि क्या था? जब मर के उसके पास जाना है, ऐसा कुछ था। आई डोंट नो द एग्जैक्ट कॉन्टेक्स्ट एंड एवरीथिंग, आई डोंट रिमेम्बर राइट नाउ, बट कुछ कुछ रेफरेंस मेरे दिमाग में आ रही है कि जब मर के सुल्तान, आई थिंक बाबा फरीद ने कहा था कि जब मर के उसके पास जाना है वगैरह, तो जब मरेंगे तभी भगवान के पास जाएंगे, ऐसा कुछ था। एंड देन I think I actually put it in the description. I don't want to misquote anything from या Guru Granth Sahib in that या sense, but I या think it was अच्छा, referencing तो to that. ये यही इसी टॉपिक पे कि अपने आप को भूल जाओ, No, but I haven't asked या my अपने आप question को yet. भूल जाओ। I haven't asked my question अच्छा, yet. मुझे भी एक सवाल करना है, लेकिन चलो तुम कर लो। Okay, now I started it, so I haven't asked the question yet. So, okay, so इश्क हकीकी में वो समझ आता है, and that's a separate topic, like you know, it's a personal belief system and everything. But इश्क मजाजी में जो आपका day to day people's love, like you know, you love another person, like you know, and to that level, um, is it okay? Is it okay to become that person? Like हीर रांझा ही हो गई. Is that okay? Like you know, is it something that is अपने आप को भूल जाओ, इतना डूब जाओ इंसान के psychologically? किसी इंसान के प्यार में इतना डूब जाओ कि अपने आप को भूल जाओ, राइट? Yeah. मैं पता नहीं क्यों इसके बारे में कुछ दिन पहले ही सोच रहा था, और Okay. मेरे दिमाग में जो एक वो आई ना, मतलब कंपेरेबल सिचुएशन, वो जहाज में जब बैठते हो ना, तो वो बोलते हैं कि इन द केस ऑफ एन इमरजेंसी, अगर ऑक्सीजन कम हो जाए तो ऑक्सीजन मास्क नीचे गिरेगा, और Okay. पहले अपना पहनना फिर फिर किसी और दूसरे का पहनना, राइट? का तो आई थिंक इट्स वेरी कंपेरेबल टू दैट, कि इंसान के उसमें आपको डूबना नहीं चाहिए, आपकी बर्बादी हो जाएगी, मुझे लगता है। I think so. Psychologically, I don't know. It doesn't sound right. It doesn't sound right. And Yeah, and I'm gonna it when doesn't sound right. And also, like, love, like, there's different types of love, right? Like, I'm experiencing a love like I've never experienced before. It's yeah. my daughter, that she's 1 year old, right? Even then, like, it's a different type of love, and usme bhi, like, I'm like very, like, engrossed, enveloped, like, completely उसमें मैं हूँ, लेकिन हम्म, उसमें फिर भी मुझे, मतलब, कहीं ना कहीं अपने तुम आप हो. को, हाँ हूँ, और मैं खो नहीं सकता ना अपने आप को, Yeah. वरना मैं, like, But then you I won't also even have be to good look for out for her, that right? kid. Exactly. Yeah, right. Exactly, तो exactly. इस पे मैं अपना ये एक शेर सुनाऊं तुम्हें. मैंने कुछ दिन पहले वाह, लिखा था इरशाद, जब I इरशाद, went इरशाद। through the आज same thing. हम दोनों एक ही चीज सोच रहे हैं आजकल Yeah. ना। So इसमें एक है कि I mean it's essentially talking about, or should I tell? Like essentially it's a protagonist syndrome, right? Like everyone has it. अपनी पिक्चर के सब क्या हीरो. प्रोटैगनिस्ट सिंड्रोम क्या हुआ, ये तो बताओ। It's like आप अपनी पिक्चर के हीरो. आपकी लाइफ वो एक तो हम पिक्चर है. सब हैं। नहीं नहीं exactly. So हाँ that's like protagonist syndrome because everyone thinks they are the center of the universe. Their universe, right? हाँ हाँ, So लेकिन मैं तो because असल में हूँ। yeah, but आपके जैसे 8 बिलियन और हैं, right? हाँ तो ना 8 बिलियन और हैं जो ऐसे का ऐसे ही सोचते हैं, राइट? तो हाँ, तो तो बट शाहरुख खान क्या सोचता होगा? वो दूसरों का भी हीरो है और खुद के भी हीरो वो तो है. वो तो राइट, हाँ। बट द पॉइंट बीइंग कि जब आप एक पेरेंट बन जाते हो तो आपका वो फोकस थोड़ा सा शिफ्ट हो जाता है, नॉट कंप्लीटली पर थोड़ा सा शिफ्ट हो जाता है. तो उसमें मैंने एक लिखा था कि हम ही के अब नहीं, शायद दीवाने वाह हो गए. हम वाह ही के अब नहीं, शायद दीवाने हो गए. अपनी ही हम फिल्म के हीरो पुराने हो गए. वाह, क्या, वेरी नाइसली सेड। तो आप खुद हाँ, अभी बहुत हीरो हो. अच्छा। आप अभी खुद हीरो हो लेकिन आप पुराने हीरो. अब कोई नया हीरो आ चुका हाँ, है तो फोकस उस पे जा रहा है धीरे धीरे. वाह, क्या राइट. बात सो बोली। या, सो there you go. That just means I have entered parenthood with that bag. वेरी नाइसली डन, आई लाइक दैट, Thank ये you. मुझे समझ भी अभी आया। बाकी बाकी आगे की वो पूरी वो सुनो गजल, तुम्हें और मजा आएगा. सुनो इरशाद। अच्छा इसी में सुना है, इसी एपिसोड में. ओके. हाँ हाँ, तो बिल्कुल। हम ही के अब नहीं, शायद दीवाने हो गए. अपनी ही हम फिल्म के हीरो पुराने हो गए. पुराने हो गए। वाह। रात दिन की नौकरी, सोए न सोने दे. रात अभी सही, अभी सही। रात दिन की नौकरी, सोए न सोने दे हमें. एक हंसी से कितने रोशन आशियाने हो गए. वाओ ब्रो, गुड। बांध कर जो वक्त, बांध कर जो वक्त
खूंटे से रखा करते थे हम। खूंटा होता है ना आपका, वो गाड़ दिया जो उसमें वो, तो बांध कर जो वक्त खूंटे से रखा करते थे हम, संग उनके सहल वो लम्हे गवाने हो गए। भाई उनके साथ टाइम का पता ही नहीं चलता। एक शेर है कि लड़खड़ाते हैं कदम, अभी उस स्टेज पे आए नहीं है, बट लड़खड़ाते हैं कदम रुकना न सीखा हमने पर। ये हम पे भी लागू हो रहा है और बच्चे पर भी लागू हो रहा है, क्योंकि दोनों के कदम लड़खड़ा रहे हैं। कि लड़खड़ाते हैं कदम रुकना न सीखा हमने पर, खानदानी ढीठ गिर गिर कर सयाने हो गए। और ये मेरा फेवरेट शेर है इसके अंदर, कि है नजर आती झलक तुझ में मेरे अजदाद की, मेरे फोर फादर्स, मेरे एंसेस्टर्स की, राइट। कि है नजर आती झलक तुझ में मेरे अजदाद की, इस बहाने उनसे भी मिलने मिलाने हो गए। वाह, क्या बात बोली। ये भी मैं आजकल सोच रहा था, या ये भी मैं आजकल सोच रहा था कि मतलब मुझ में, मतलब मेरी 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 बेबी में, या like there's you know hints of my parents, और लेकिन ग्रैंड उनके पेरेंट्स। भी पेरेंट्स की हिंट्स होंगी जो जिनसे मैं मिला भी नहीं हूँ। या एग्जैक्टली, राइट। तो वही है ना कि है नजर आती झलक तुझ में मेरे अजदाद की, इस बहाने उनसे भी मिलने मिलाने हो गए। वाह। भूख, गर्मी, नींद, बेचैनी या किलकारी तेरी। भूख, गर्मी, नींद, किलकारी बेचैनी। क्या होती है? किलकारी जब वो हंस के एकदम से वो, उनका होता है, हंसते किलकारी सी होती है, जैसे वो एकदम से हंसते हैं करके, राइट। तो भूख, गर्मी, गिगल। नींद, बेचैनी के गलिंगा, या किलकारी तेरी याद मुझको मुख्तलिफ सारे तराने हो गए। कि आपकी आवाज से ही पता चल जाता है कि उसको क्या चाहिए अब। नॉट देयर हम्म येट बट, सोचता हूँ क्या विरासत में तुझे मैं दे चला। सोचता हूँ क्या मतलब विरासत आप, विरासत में तुम्हें दे। क्या दे चला भाई तुम्हें, अपनी इनहेरिटेंस में क्या दूं, राइट। हम्म तो सोचता हूँ क्या विरासत में तुझे मैं दे चला, जिंदगी फिर आंकने के ये बहाने हो गए। ये नहीं समझा। आप अपनी लाइफ का एक वो सोचने लग जाते हो कि उसको क्या विरासत में देना है, आप पहले ये सोचते हो मेरे पास है क्या, मेरे हाँ। पास क्या है देने को। सो इट्स, ये बहाने मिल गए आपको नए कि मैं देखूं मैंने कमाया क्या है आज तक, मतलब नॉट जस्ट मनी वाइज, इंटेलेक्ट वाइज या या समझ वाइज या क्या। so, सोचता हूँ क्या विरासत में तुझे मैं दे चला, जिंदगी फिर मतलब आंकने मतलब कि ये बहाने हम्म हो गए। मतलब अब तुम्हारी लाइफ को एक नया पर्पस मिल गया है। या यू जस्ट अब नॉट द नया हीरो पर्पस एनीमोर। ये जस्ट ये पुराना है, या पुराना हीरो। हीरो पुराने हो गए। हाँ। ये अमिताभ बच्चन और अभिषेक आ गया अब। अभिषेक भी अब तो पुराना हो गया होगा, या अभिषेक बच्चन। या ही हैज अ डॉटर नाउ। टाइगर श्रॉफ। टाइगर श्रॉफ आ जैकी। गए। हाँ, जैकी श्रॉफ पुराना हो गया। या बट बैक टू बुल्ले शाह, हम कहाँ के कहाँ टेंजेंट ले गए। तो रांझा अच्छा रांझा कर मेरे दी वे मैं आप पे रांझा हो। या अच्छा, मेरे पास एक सवाल है। या दिस वाज एक्चुअली वन वन ऑफ माय फेवरेट वंस दैट यू रिटन, सो ओके थैंक यू। बहुत बहुत अच्छा लगा। मेरे पास जो सवाल था वो हम उस पे बात कर रहे थे कि अपने आप को खो देना, राइट। इश्क इश्क मजाजी में या इश्क हकीकी में अपने आप को खो देना। तो बुल्ले शाह का जो सबसे मशहूर, जो फॉर मी इज बुल्ला की जाना मैं कौन। मुल्ला की जाना मैं कौन। और ये भी वही है, बुल्ला की जाना मैं कौन, ही इज आस्किंग कि मैं कौन हूं। तो मतलब क्या ये वही, ये इज दिस अबाउट द सेम वेयर ही इज लॉस्ट हिमसेल्फ? um I think in this one what I understood is because he's referencing many things in there, right? बुल्ला की जाना मैं कौन, ना मैं मोमिन ना परौन, ना मैं मूसा ना परौन, ना मैं जागण ना विच सौन. So he's essentially have lost himself in a way that from the materialistic world, that nothing else matters kind of thing, right? कि हर चीज छोटी लगने लगी, राइट। जब आप खुदा के एंगल से देखते हो, जब कतरा मिला अच्छा। समंदर में, वो कतरा समंदर, अब ये सोचो ना कि कतरा समंदर में हो गया तो वो तो खुद समंदर बन गया ना। अब आप ना कतरे को पता है अब कि वो कौन था कौन है, और ना ही समंदर को पता है कि वो कौन सा कतरा कहाँ से आया, बट वो समंदर बन चुका, राइट। तो अगर आप खुदा को समंदर समझो और उसे कतरा समझो, तो अब वो कतरा भी समंदर है और उसके रिस्पेक्ट में एवरीथिंग एल्स इज नथिंग, बहुत छोटी लगती है उनको चीजें, क्योंकि वो खुद समंदर बन चुका है अब, वो समंदर का हिस्सा बन हाँ, चुका है, राइट।
हाँ वो that makes sense, या लेकिन इसमें एक स्ट्रगल है, लाइक इसमें जो है कि ना मैं मूसा ना फिरौन, और मतलब ये पढ़ के या सुनाओ जरा, अगर तुम्हारे पास लिखा हुआ है पढ़ के सुनाओ। या आई कैन देयर यू गो बुल्ला की जाना मैं कौन ना मैं मोमन विच मसीता ना मैं विच कुफर दिया रीता ना मैं पाका विच पलीता तो एसेंशली मैं मस्जिद में मोमन भी नहीं हूँ और कुफर की रीतों में भी नहीं हूँ कि ना मैं मस्जिद में बैठा हूँ इन द सेंस कि एक पाक वो बन के और ना मैं किसी कुफर दिया रीता कुफर दिया रीता की अगर आप इस्लामिक उसमें देखोगे कि एवरीथिंग एल्स इज एसेंशियली बिकम्स कुफर राइट लाइक इफ यू नॉट डूइंग इट दैट वे उसमें भी कुछ कुफर के वो है ना जैसे आइडल वर्शिपिंग इन वो सब तो उनकी रीतों में भी हम्म नहीं हूँ राइट तो ना हम्म मतलब वो एसेंशियली ये कह रहे हैं कि मैं हिंदू भी नहीं हूँ मैं मुस्लिम भी नहीं हूँ मैं ये भी नहीं हूँ मैं वो भी नहीं हूँ मैं किसी रीत में भी नहीं हूँ ना मैं हम्म अंदर पेद किताबां ना मैं रहंदा भंग शराबां ना मैं रहंदा मस्त खराबा तो ना मैं अंदर वेद किताबां भाई इसमें वेद की बात हो रही है वेदों की बात हो रही है कि ना मैं उस वेदों की किताब में हूँ राइट ना मैं मैं हूँ का क्या मतलब, कि मैं, मैं उसमें लाइक इज नहीं ही हूँ मैं लुकिंग फॉर, उसमें नहीं और मिलता इज, मतलब कि अपने आप को ढूंढने, मतलब कि मैं किसमें, आई मीन लाइक इट कैन मुझे बी क्या चीज अपील करती है। it can be an existential crisis in that sense as well right like you know कि मैं अब कहीं भी रिलेट नहीं कर पा रहा हूँ कि मुझे मैं कहीं, हाँ, मैं अपने आप को नहीं ढूंढ पा रहा हूँ इसमें। या आई लुक हियर, आई लुक देयर, या बस जम नहीं रहा है, हाँ। जम नहीं रहा एग्जैक्टली तो मैं ना मैं इन उनके अंदर हूँ अब उसमें ये भी कहते हैं कि ना मैं शादी ना गमनाकी ना मैं विच पलीती पाकी ना मैं आबी ना मैं खाकी तो वो कह रहे हैं ना मैं शादी ना गमनाकी ना शादी हो गया शाद वर्ड से आया जो खुशी तो मैं ना खुशी हूँ ना गमनाकी हूँ राइट मैं इंडिफरेंट हूँ। मैं इंडिफरेंट हूँ ना मैं विच पलीती पाकी कि ना मैं बुरा हूँ ना मैं आबी ना मैं खाकी भाई आई थिंक खाकी उसमें जमीन से, जमीन और से जुड़ा आबी मतलब खाक पानी। भी नहीं हूँ आबी पानी भी नहीं हूँ और खाक भी नहीं हूँ राइट जमीन भी नहीं हूँ और हम्म, पानी भी नहीं हूँ राइट ना मैं आतिश ना मैं पौंड तो इसके अंदर आपकी ना मैं आग, ना अ, मैं तो पौंड क्या। अब आप पौंड मतलब हवा पंजाबी अच्छा में अच्छा। पौंड कहते हैं अर्थ विंड पवन एंड फायर भी नहीं क्योंकि है। क्योंकि आई थिंक संस्कृत वर्ड जो है और हिंदी वर्ड जो है वो पवन है हवा को पवन हम्म कहते हैं तो पंजाबी में वो पौंड बन जाता है राइट तो वो बोल पौंड रहे हैं कि मैं एलिमेंट्स में भी नहीं हूँ। बट आप ये देखो ना कि यहाँ पे उसका लोकल का वो कितना कल्चरल कितना वो दिख रहा है सामने क्योंकि इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर ही एक फिलोसफर हुए चारवाक जिन्होंने हम्म कहा है कि ही डजंट बिलीव इन गॉड एंड एवरीथिंग लाइक यू नो उस फिलॉसफी के अंदर गॉड नहीं है उन फिलॉसफी के अंदर सिर्फ एलिमेंट्स है आग पानी ये जो आपके मिट्टी और ये सब ये एलिमेंट्स है और आप इन्हीं से मिलके बने हो और इसी में आप चले जाओगे हम्म राइट सो चारवाक के अकॉर्डिंग है तो इट काइंड ऑफ गिव यू रेफरेंस एज वेल कि अगर उन्होंने वेद किताबा कहा है वेदों में मैं नहीं हूँ मैं इसमें नहीं हूँ मैं उसमें नहीं हूँ तो उन्होंने जो बाकी और भी जो रेफरेंसेस या फिलोसफीज हैं उनको भी ठुकरा दिया कि मैं उसमें भी नहीं हूँ हम्म राइट सो दैट्स वेयर आई थिंक ही इज टॉकिंग अबाउट या ना मैं भेद मजहब दा पाया ना मैं आदम हवा जाया ना मैं अपना नाम तराया तो ना मैं भेद मजहब मतलब मैंने मजहब के नाम पे डिवीजन नहीं की लाइक हम्म मैंने ये नहीं देखा कि वो दूसरे मजहब से है या मैं दूसरे मजहब से हूँ ना मैं आदम हवा जाया भाई ना जो एडम और ईव की कहानी है या ना वो उसको मेरा वो मैं उनका पैदा हुआ किया हुआ भी नहीं हूँ आदम का ही सेइंग oh he's saying he's not from Adam, ही सेइंग ना and मैं yeah, so आदम he's हवा basically, जाया जाया मतलब yeah, मतलब जन्म दिया या पैदा हम्म किया राइट तो हम्म मैं उनका पैदा तो किया हुआ भी नहीं हूँ अपने आप को हर चीज से हर चीज से अलग कर डिसोसिएट, यप तो क्यों। अव्वल आखर आप नु ये अब आगे रेफरेंस आ रही है ना अव्वल आखर आप नु जाना ना कोई दूजा होर पछाना मैं तो ना कोई होर सियाना अव्वल आखिर क्या। मतलब लास्ट में जाके आखिरी में मैंने अपने आप को पहचान लिया हम्म ना कोई दूजा होर पहचाना मेरे ठीक। मेरे अलावा मेरे से अलग कुछ भी नहीं है तो वो एसेंशियली ये कह रहे हैं कि खुदा जो है वो अनल हक की बात हो रही है यहाँ पे कि मैं ही हूँ उसी की उसमें मैं ही हूँ वो मैं हूँ और द मैं वो हूँ यूनिवर्स एक्सपीरियंसिंग
Yeah, it's myself. essentially, yeah, exactly. And आप you are become one with the creator. So वो अगर आप उसको रेफरेंस को वापस भी ले जाओ तो वो रांझा रांझा कर दी वे मैं आप पे रांझा हुई सद्दों मैंने दीदो रांझा हीर ना आखो कोई मैं रांझे ओ मैं विच मैं रांझे विच राइट वो आगे उसका रेफरेंस है ना तो वो वही बात वो कह रहे हैं कि मेरे अलावा अब कोई भी नहीं अनल हक की बात हो रही है यहाँ पे अहम ब्रह्मास्मि की बात हो रही है यहाँ पे कि आई एम द वन essentially Hmm. राइट तो यह है ना मैं मूसा ना फरौन ना मैं जागण ना विच सौन मूसा जो मोजेस की बात हो रही है और फेरो जो Hmm. उनके असेंशली ब्रदर थे लाइक मुंह बोले भाई थे बट वो राजा थे और जब मोजेस छोड़ के गए वो सब तो ही वाज हिज जानी दुश्मन भी वही बन गए थे Yeah. राइट तो या आई थिंक दैट्स इट ये कीप्स बड़ी गोइंग बड़ी स्ट्रगल, दिस दिस इज अ, मुझे लगता है काफी स्ट्रगल थी इनकी लाइफ में, स्ट्रगल होगी तभी ऐसा कुछ लिखा I mean, he होगा, was a लाइक philosopher, like and इंटरनल स्ट्रगल है ये। internal struggle, yeah, and he was a philosopher as well, like a poet, a philosopher. So I think काम यही था। आपने आसपास जो देखी चीजें लाइक अब बाबा फरीद भी थे लाइक इनसे आई थिंक 500-600 साल पहले बाबा फरीद थे उन्होंने भी उस पे बहुत लिखा है आपके गुरु नानक थे इनसे 200-3 दो हम्म। 250 साल पहले उन्होंने भी जात पात पे बहुत लिखा है क्योंकि इट वाज अ बिगर प्रॉब्लम देन इट इज राइट नाउ आई मीन टू बी ऑनेस्ट आई डोंट वांट टू से इट कि राइट नाउ इट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम बिकॉज हम झेल नहीं रहे जो झेल रहे हैं उनको पता है कि कितनी बड़ी प्रॉब्लम है राइट But also like time has progressed in the sense that more people don't believe in those systems anymore, right? Like probably a larger portion of people believed in those systems back then than they do now. Yeah, but that's the thing, right? Like, I would recommend a movie for this. Article 15, Ayushmann Khurrana ki aayi thi, and it kind Hmm. of creates a good distinction between like India and a Bharat, um, which is essentially understanding um, what what kind of life they are living as well, while we think that it's gone, it's not there anymore in the Hmm. society. People who are actually living it, we should उनको ask them. ज्यादा तो Yeah. उनको उनको उनसे पूछो। Check it out. Check out the movie. It's actually really interesting and really, really good. Um, Yeah. but yeah, other than that, like एक उनके और भी बहुत मशहूर गाने हैं मतलब एक्चुअली काफी है काफी लिखते थे ये इज एसेंशियली लाइक अ पंजाबी पोइट्री हाँ एक स्टाइल है लिखने का जिसमें आपके बहुत सारे स्पिरिचुअल रिफ्लेक्शन और फोक म्यूजिक भी बहुत बनता है इसके अंदर तभी आप ये देखोगे कि Hmm. बुल्ला की जाना मैं कौन या इवन दमादम मस्त कलंदर या आपका रांझा रांझा कर दी वे मैं लाइक These are these are immortal these works, are huh? because there's folk song like आप folk lives on like आपका बाकी सारे जो पॉप सॉन्ग्स होते हैं और ये सब होते हैं ये सब दे डाई अवे बट फोक जो होता है वो इट्स प्रिजर्व्ड and India Pakistan both right like दोनों जगह पे सुना जाता है और बहुत ही रिस्पेक्टेड तरीके से राइट एक आई थिंक मुझे उससे याद आ रहा है कि एक ना मैं सतिंदर सरताज का एक इंटरव्यू सुन रहा था तो उन्होंने एक कह रहे थे कि वो कहीं पे जा रहे थे आई थिंक इंडिया वाली साइड थे बट वहां पे ना एक मील पत्थर होता है ना जो आई थिंक जो मार्कर होता है कि Mile माइल मार्कर marker. या सो वहां पे लिखा हुआ था कसूर 14 14 माइल या 14 किलोमीटर Hmm. तो उन्होंने एक शेर लिखा था उस पे या कथा लिखा था कि बुल्ले दे कसूर दा कसूर कोई ना Hmm. बुल्ले दे कसूर दा कसूर कोई ना 14 मील शहर सातों दूर कोई ना मतलब बुल्ले कि 6-14 मील, लेकिन और लेकिन दूर उससे है ज्यादा नहीं दूर लेकिन भी कुछ नहीं। या तो नहीं नहीं वो कह रहे हैं ज्यादा दूर है नहीं लेकिन उसका कसूर कोई नहीं है उसके मतलब इंडिया और अच्छा। पाकिस्तान बन गया उस कसूर शहर का क्या कसूर है या बुल्ले शाह का हम्म। क्या कसूर है या मेरा क्या कसूर है कि मैं वहां जा नहीं सकता ते बुल्ले दे कसूर दा कसूर कोई ना 14 मील शहर सातों दूर कोई ना जिथे सूफियां दा शाही पीर वसदा एक दिन जावांगे जरूर कोई ना वाह। अपने आप को तसल्ली दे रहा है कि एक दिन जाऊंगे कोई नहीं बट वाह। सूफियों का शाही ये सतिंदर सरताज की वो है उनके मैं इंटरव्यू सुन रहा था तो मुझे याद आ गया एकदम बट या। बट यार बहुत बहुत से गाने हैं आई थिंक आपका मेरा पिया घर आया ओ लाल जी
वो यार वो ओ गाना से मेरा वो पिया मेरा तो घर आया ओ राम ये जी। बुल्ले शाह, ये यस बुल्ले शाह का है। यस या इट ब्रो केम आउट इन द एक मूवी लाइक माधुरी दीक्षित पे वो फिल्म था आई थिंक 1995 में याराना मूवी आई थी आई थिंक एक तो उसमें आई थिंक ये आया था मेरा क्या था वो गाना क्या था लाया बारात लाया घूंघटा उठाने आया अपना बनाने आया वो मेरा पिया घर आया ओ वो वाला राम मैंने जी। नहीं सुना, लेकिन या लेकिन नुसरत फतेह अली खान या साहब का ही हैज सung it as well of पिया घर course आया, या और उनका मैंने सुना। और अभी आजकल आजकल एक बंदे ने रीमिक्स किया है, उसका नाम है असद खान। अच्छा क्या रीमिक्स किया है ब्रो उसने, क्या रीमिक्स किया है। bro आई share it विल in the इनकरेज, description share it in the description for या everyone to listen to it uh, आई विल क्या रीमिक्स किया है bro, but मतलब yeah मजा आ गया। but that was also Bulle Shah so you can see like even after like almost 700 years of him passing या 600 I don't know when did he pass या ये बात मुझे बड़ी फैसिनेट करती है कि ये जो गाने चल रहे हैं 700 800 साल पहले, हमने अमीर खुसरो के बारे में भी बात की yeah थी। 300 400 आ, साल yeah 300 400 हाँ yeah yeah लेकिन sorry yeah go for it हाँ go for it और भी लाइक ये इतने लाइक इतने कैसे लाइक they're immortal these works। I think people were connected to their emotions a little better back then or emotions and even like their philosophies a little better like life philosophies. I'm not saying there were not like and to be honest like eh, there are some good work happening in every decade and everything हो रहा है काम बट आप अभी बिजी हो पॉपुलर सुनने में ना कि अच्छा कई बार सुनने में पॉपुलर हमेशा अच्छा नहीं होता राइट तो विद द टेस्ट ऑफ टाइम यू विल सी कि आपको अगले 40 साल के अंदर कौन सा गाना याद आता है आज का एंड दैट विल बी अ गुड वर्क दैट विल बी लेकिन वर्क दैट इज या ये अपने जमाने का पॉप पॉप म्यूजिक था। हो सकता है अब क्योंकि अब आप शायद हमें नहीं पता ना उस जमाने में क्या है क्या नहीं मे बी अब आप गालिब की हम्म, बात करो तो उनको अपने जमाने में नहीं समझा गया था 200 साल बाद आ जाके गालिब को लोग समझ रहे हैं हाँ राइट तो अब मुझे तो अभी भी नहीं समझ आ रहा। तो तो वही है ना वो क्योंकि उन्होंने भी कहा था ना सताइश की तमन्ना न सिले की परवाह अगर नहीं है मेरे अशार में मानी ना सही कि भाई तुम्हें नहीं समझ आ रहा तो ना सही मैं क्या करूं भाई मुझे ना सिले की परवाह की जो रिजल्ट की परवाह ना मुझे सताइश की तमन्ना ना मुझे कोई सेटिस्फेक्शन चाहिए तुमसे हम्म राइट सो ही जस्ट लाइक नहीं समझ आ रहे तो ना सही नहीं मेरे अशार में शायद शेर में मानी मतलब तो नहीं सही हम्म राइट लेकिन बात बिल्कुल फिलोसॉफिकल लेवल पे बिल्कुल ठीक है। फिलोसॉफिकल या लेवल पे उन्होंने इतने अच्छे अच्छे वो लिखे हैं कि एक मुझे याद आ रहा है उनका कि रंज से खूगर हुआ इंसान तो मिट जाता है रंज मुश्किलें मुझ पर पड़ी इतनी कि आसान हो गई राइट तो वो क्या कह रहे हैं कि वाह, अगर मैं जो रंज जो आपकी मतलब दुख से और ये जो लाइफ के अंदर रंजिश जो मतलब जो भी हो जाए उस रंजिशी सही। रंजिश ही सही दिल ही दुखाने के लिए आ अब अहमद फराज का वो भी है राइट या, तो नहीं लेकिन रंज से खूगर हुआ कि अगर मैं उसको यूज हो जाता हूँ इंसान अगर यूज हो जाता है तो वो रंज ही मिट जाता है वो दुख ही मिट जाता है वो हम्म रहता ही नहीं है तो मुश्किलें मुझ पर पड़ी इतनी कि आसान हो गई कि मुझ पे इतनी मुश्किलें आई कि पढ़ पढ़ के ही मतलब वो आसान हो गई अब मेरे लिए अब मैं किसी भी उसको हैंडल कर सकता हूँ एक्सपीरियंस राइट खिलाड़ी तो हूँ मैं। फिलोसॉफिकल हो गया ना आप टच देखो और हर किसी के साथ होता है जिंदगी के अंदर ये राइट सो एवरी हम्म वन कैन रिलेट टू इट वंस यू अंडरस्टैंड या राइट तो या तो वही है आई थिंक उसको अगर समझो गालिब को समझो अगर इनको समझो तो दे आर टॉकिंग अबाउट एवरीडे पीपल लाइफ if you can understand it and then you can like kind of connect to it and that connection is what keeps it alive I think दैट्स ट्रू, दैट्स इंटरेस्टिंग, yeah इंटरेस्टिंग टेक ऑन दैट। चलो जाते जाते कुछ और बुल्ले शाह का सुना दो, वी कैन क्लोज ऑन बुल्ले समथिंग शाह एल्स दैट। ਜੇ ਰੱਬ ਮਿਲਦਾ ਜੇ ਰੱਬ ਮਿਲਦਾ ਨਾਤਿਆਂ ਤੋਤਿਆਂ ਤਾਂ ਮਿਲਦਾ ਡੱਡੂਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਜੇ ਰੱਬ ਮਿਲਦਾ ਜੰਗਲ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਮਿਲਦਾ ਗਊਆਂ ਵੱਛੀਆਂ ਜੇ ਰੱਬ ਮਿਲਦਾ ਮੰਦਰ ਮਸੀਤੀ ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਚਾਮ ਚੜਕੀਆਂ ਬੁੱਲੇ ਆ ਰੱਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਜੇ ਨੀਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਚੀਆਂ
हम्म राइट? कि अगर अब समझ आया होगा ना कि जे रब मिलता नाते हैं धोते, अगर नहाने धोने से रब मिलता तो डड्डू और मच्छी, मेंढक और मछलियों को मिल जाता। जे रब मिलता हम्म जंगल वेले, जंगल या बेले में घूम के जैसे जोगी घूम रहे होते हैं, अगर वहां मिलता तो मिलता गौवा वछियां, गायों को, जो गायें घूम रही है वहां पे, और वो सब जो बाकी के जानवर है उनको मिल जाता। हम्म जे रब मिलता मंदर मसीती, ते मिलता चाम चढ़कियां, मतलब कि एक्सक्यूज मी, जे वही अगर मंदिर मस्जिद में मिलता, अगर इन बिल्डिंग्स में मिलता, तो जो वहां पे जो हम्म उल्टे होके वो लटक रहे हैं चमगादड़, उनको मिल जाता। बैट्स हाँ राइट? तो कह या रहे हैं कि बोले यार रब ओना नु मिलता नीता जिना दिए से, जिनकी नीयत सच्ची है, जिनकी नीयत साफ अच्छा है, उनके लिए रब, हम्म उनको रब मिलता है। तो ये वो कह रहे हैं, वो हाँ कर रहे हैं, ये दैट्स द वन आई वाज लुकिंग फॉर। एक और है एक अलिफ बाय बुल्ले शाह वो भी एक कोक स्टूडियो की परफॉर्मेंस है साईं जहूर की नूरियन साईं जहूर